जानो, अंधेरे में भी उजाला जानो, संकल्प से साधो आत्मबल, यही है अध्यात्म का असल बल. Good afternoon everyone, I Ashmi Jha welcome you all with warmth and pride to today's thought-provoking session hosted under the banner of Spiritual Club Atmaspandan in collaboration with NSS Unit, Expression and Raag Music Society of Geetaradan International Business. Today, it is our honor to host Central Industrial Security Force CISF personnel whose dedication and service make our public spaces safe and secure. We are deeply grateful for your presence here. I take this moment to extend a warm welcome to Vice Chairman Shri Anirudh Jindal Sir, Director Professor Dr. Vikas Kant Sir, Professor Dr. Urvesh Chaudhary Ma'am, Professor Dr. Kapil Dev Sharma Sir, Inspector Anil Kumar Sir, other respected dignitaries and enthusiastic participants. Your presence truly makes this occasion even more special. As in our tradition, we begin our journey by seeking the divine blessings of Ma Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge. The lighting of the ceremonial lamp represents the dispelling of ignorance and the embracing of light, both within and around us. I kindly request Vice Chairman Sir, Professor Director Sir, Professor Urvesh Ma'am, Professor Kapil Sir and other esteemed dignitaries for lamp lighting ceremony. I also request Inspector Anil Kumar Sir to come for lighting ceremony. Warm round of applause.
would like to introduce you all to the institution. Egerton International Business School, an institution that prides itself on empowering students with knowledge, skills and platforms to excel. The year 2004, GIBS is affiliated with Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and is approved by All India Council for Technical Education and Bar Council of India for its law program. The institute offers a variety of courses including MBA, MBA International Business, MBA Integrated, BBA Honours, Integrated BA-LLB Honours, BBA-LLB Honours and LLM. GIBS has consistently been recognized for its excellence. Accredited with an A grade by NAAC in its third cycle, rated A+ by the State Fee Regulatory Committee under the NCT of Delhi, earned the highest grading of A by the Joint Inspection Committee of the Government of NCT of Delhi and GTS IPU since 2013. Rated grade A by the Academic Audit Cell of GTS IPU since 2011. To officially open the session and offer a warm welcome to our guests, I now invite our respected Director, Professor Dr. Vikas Nath Sir, to address the gathering. सभी CISF जवानों को मेरी तरफ से जय हिंद। इस समय जब बॉर्डर पे चीजें सेंसिटिव हैं और दुश्मन हमारे द्वार आया हुआ है, बेशक वो CISF के जवान हैं जो दुश्मन तो करीब भी नहीं है। नहीं बॉर्डर हमारे जवान ने पास में भी नहीं भटकने दे रहे। बहुत ट्राई कर लिया उन्होंने। वो ड्रोन वगैरह नहीं आ पाए, अभी आर्मी की कन्फ्रंटेशन होनी है। तो जहां हमारे जवान बॉर्डर पे हैं, वहां आप जैसे जवान हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट, न्यूक्लियर प्लांट्स और जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपका काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे जवान जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं। और जैसे सर ने बोला, अभी तक तो हम मिसाइल एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, कोई ड्रोन नहीं आ पा रहा। अगर खुदा न खास्ता कोई आ जाए तो आप जैसे लोग उसको वहीं पे डिफ्यूज करेंगे। फिर तो आपका काम भी उतना ही जरूरी है। जैसे घर में दुश्मन को आने से रोक रहे हैं, वैसे अंदर के दुश्मन को आप रोक रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस ट्रेनिंग के जरिए इस प्रोग्राम का पार्ट हैं और आप इस प्रोग्राम में आए हमारे साथ। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहूँगा। आपकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग रहती है जब आपको जवान बनाया जाता है, जब आपको कमीशन किया जाता है ड्यूटी के ऊपर। पर उसके साथ साथ ये देखा गया कि हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली वायर और रीवायरिंग अपने आप करता रहता है। मतलब ये है कि जिस तरीके से सिचुएशन बदलती है, हमारा जो ब्रेन है उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी वायरिंग को भी चेंज करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारा ब्रेन जो है जैसे पहले था और जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है, उसकी इंटरनल वायरिंग भी चेंज हो रही है, जो हमें दिखती नहीं है क्योंकि ये सब मांस कोशिकाएं हैं। पर जिस तरीके से ब्रेन काम करता है, उसके अंदर के सिग्नल्स वगैरह कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टी, द ब्रेन्स अडेप्टेबिलिटी टू अडेप्ट टू सिचुएशन। जब हम मेंटल एंड्योरेंस की बात करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से सिचुएशन को अडेप्ट कर रहा है। दुश्मन को देखकर एक जोश आ जाना कि अब मेरे को इसको मारना है, और दुश्मन को देखकर भाग जाना, ये दोनों चीज़ें हमारा ब्रेन हमको करवा रहा है। बॉर्डर के उस पर हमें देख के वो भागते हैं और बॉर्डर के उस पर उनको देख के हम उनके पीछे भागते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग का ही नहीं, हमारे ब्रेन में जिस तरीके का मोटिवेशन लेवल हमें दिया गया है ट्रेनिंग के जरिए, ये उसका फर्क है। कुछ लोग दुश्मन को मारने के लिए भागेंगे और कुछ लोग दुश्मन को देखकर भागेंगे। रेजिलियंस, बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। सिचुएशन को देख के हम किस तरीके से सिचुएशन पर रिएक्ट करेंगे और उसमें मजबूती के साथ काम करेंगे, ये भी सब चीजें हमारा ब्रेन ही हमको बता रहा है।
तो जहाँ पे आपका फिजिकल ट्रेनिंग है वहाँ पे आपकी मेंटल ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। इसकी वजह से ये कार्यक्रम आज हमने सोचा कि आपके लिए करें। और जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं श्री के.टी. शर्मा, वो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं और हिप्नोसिस के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी अपने ब्रेन के बारे में, अपनी सोच के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जैसे कॉग्निटिव कंट्रोल एंड फोकस, जिसमें कि अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, चीज़ों को याद करने की शक्ति, मेडिटेशन, डीप वर्क, अपने लिए किस तरीके से आप गोल्स को सेट करें रोज़ की रोज़, जिससे कि आप पूरे दिन के अंदर मजबूती से काम कर सकें, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अब हम ये बोलते हैं ब्रेन में केमिकल लोचा होता है। अपने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी होगी और उसमें केमिकल लोचा के बारे में आपने सुना भी होगा। तो दो इसमें केमिकल्स हैं, डोपामाइन और कॉर्टिसोल। डोपामाइन जो है वो तब रिलीज होता है जब आपके इधर कंधे पे मेडल लगता है, जब आपकी तारीफ की जाती है, जब आपको एक ट्रॉफी दी जाती है, सबके सामने तालियां बजती हैं, तो मन करता है कि हम ऐसा काम और करें। तो जितने मेडल लगते जाते हैं, एक मेडल लगा तो अगले मेडल की चाहत वो बढ़ती है, वो ये वाला कंपाउंड करता है। दूसरा होता है कॉर्टिसोल, जो कि हमारा स्टेमिना बढ़ाता है। कैसे? जब आप ठंडे पानी के नीचे सर्दियों में नहाते हैं तो एक शॉक सा आपके शरीर के अंदर जाता है, पर जितनी मजबूती के साथ आप उन हार्शनेस को फेस करते हैं, उतना मजबूत हमारा माइंड हो जाता है और उतना मजबूत हमारा शरीर हो जाता है। हमारे ब्रेन में ये वाला केमिकल है, उस मजबूती को जनरेट करता है। और फाइनली हमारी हैबिट्स जो है उसके हिसाब से हम रोज कुछ आदतों को अपना लेते हैं जो कि हमारे लिए दिक्कत भी कर सकती हैं। कुछ अच्छी आदतें हमें फायदा करती हैं, पर कुछ बुरी आदतें हमें दिक्कत करती हैं। तो उन बुरी आदतों से कैसे निकलना है, वो भी हमारे ब्रेन का ही ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया जाए जिसमें कि हम आपके ब्रेन के साथ कुछ प्रैक्टिकलिटीज कर सकें और आपको अपने ब्रेन के बारे में जानने की और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप देश के इस नीड ऑफ टाइम में आप हमारे साथ हैं और हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, आराम से अपने घरों में सो पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जवान फ्रंट पे हैं और आप जैसे जवान हमारे घर के अंदर काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं जय हिंद दोबारा बोलूँगा, जय हिंद, थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you so much, sir, for your kind words and setting the tone for the session. Honored to introduce the esteemed force who is with us today, the proud personnel of the Central Industrial Security Force, CISF. The CISF, established in 1969, is one of India's premier central armed police forces, entrusted with the critical responsibility of providing security to the country's most sensitive infrastructure, including airports, metro rail, nuclear plants, government buildings, and major industries. Their motto, protection and security, Sanrakshan Evam Suraksha, is not just a phrase, it is a way of life. Whether it's safeguarding our skies, shielding our metros, or ensuring the seamless functioning of industrial establishments, CISF personnel carry out their duties with unshakable discipline, unmatched alertness, and unwavering commitment. Today, as we look around, we are reminded of the tireless contribution of every military and paramilitary force, every individual in uniform who stands as the first line of defense, not only at the borders, but within the heart of the nation. You are the silent strength behind our everyday peace, and for that, we thank you from the bottom of our hearts. We are truly grateful that amidst your demanding schedules, you took time to be with us today. Your presence enshrines this event and adds to the spirit of what Self-Care stands for: resilience, discipline, and inner power. With this heartfelt acknowledgement, I now request Vice Chairman Sir to kindly come forward for the green welcome of our CIF personnel, Inspector Anil Kumar, 5th Reserve Battalion, Ghaziabad.
सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. The Self-Care Spiritual Club, Atmaspandan, is not merely a college initiative. It is a quiet revolution in the making. It is a space designed for self-discovery, mental discipline, emotional strength, and inner clarity. At a time when the noise of the world often drowns our inner voice, this club stands as a sanctuary, a place where introspection meets awareness and calm meets courage. Whether we are students, educators, or warriors in uniform, one truth binds us all: the mind is our greatest battlefield, and when harnessed with intention, it becomes our greatest strength. That is the essence of today's session: brain's inner power to tackle mental endurance, especially curated for the brave personnel of CISM. Through techniques like hypnosis and sound vibration therapy, the session will help unlock new layers of mental clarity, focus, and emotional resilience. In a world that constantly tests our endurance, this initiative gently reminds us: true strength begins within. And now, to walk us through the vision, structure, and future of roadmap of self-care, I take immense pleasure in inviting the driving force behind this initiative, Professor Dr. Urvesh Chaudhary, ma'am. All of you. आज आप सबने हमारे यहाँ पर आने का निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय अनिल सर और सम्मानित हमारे वाइस चेयरमैन सर, हमारे निदेशक प्रोफेसर विकास नाथ सर एंड हमारे रिसोर्स पर्सन आज के प्रोफेसर के.डी. शर्मा सर एंड ऑल द टीम विच इज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इवेंट. I welcome everyone and I am highly grateful to them for giving this opportunity to me so that I can interact with you all. आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. आप तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरी मीटिंग किशोरी सर से हुई, जो यहाँ के DIG हैं, आपके यहाँ के DIG हैं, और अनिल डामरे सर से बात हुई जो ट्रेनिंग DIG हैं आपके ही बटालियन में, आपकी ही फोर्स में. जब उनसे मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि स्ट्रेस, तनाव, जो आजकल अगर मैं बात करूं तो एक छोटे से बच्चे में भी वो तनाव, स्ट्रेस दिखाई देता है, जबकि एक छोटा बच्चा जिसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है वो किस तनाव से ग्रस्त हो जाता है. ये एक आम प्रॉब्लम है आज के समय में जो हमें हर जगह दिखाई देती है. चाहे हम छोटे बच्चे की बात करें जो स्कूल जा रहा है अभी, अगर मैं 3 साल 3.5 साल के बच्चे की भी बात करूं, वो भी कहता मुझे स्ट्रेस हो रहा है मम्मा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आज तो मैं बहुत परेशान हो गया. क्यों परेशान हो गया? क्योंकि स्कूल में है ना किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसको कंपटीशन में हरा दिया या उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, वो स्ट्रेस क्रिएट हो गया और बच्चा है ना शाम को बहुत परेशान है, कल तो मुझे उसको हराना है. तो ये तनाव आ कहां से रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आज से तकरीबन 27 साल पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगी. जब मैं पहली बार अपने गुरुजी से मिली, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है. जब मैं गुरुजी से मिली तो उस समय मेरी नई शादी हुई थी, तो मुझे भी स्ट्रेस था. एक आम बात है क्योंकि अपना परिवार छोड़ के दूसरे के परिवार में जब हम सम्मिलित होते हैं तो हमें रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, सामने वाला चाहे आपसे कितने भी अच्छे तरीके से रह रहा हो, पर वो एक स्ट्रेस है जो आ जाता है. जैसे आप लोगों का घर से दूर रहना, और आपके वर्किंग टाइम्स अप एंड डाउन होना, या फिर है ना आपके घर से पूरे घर में कोई परेशानी है लेकिन आप यहाँ पे हैं, उसका स्ट्रेस हो जाना. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं और ये हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है. तब उन्होंने मुझे एक छोटा सा वाक्य बताया जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे समझाया कि स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करते हैं. आज मैं अपना स्ट्रेस को 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखती अपने पास. 15-20 मिनट तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, बट उसके बाद आई एम एबल टू कंट्रोल दैट स्ट्रेस. और कंट्रोल करने के लिए बड़ी अच्छी पद्धति उन्होंने मुझे बताई. एक वाक्य उन्होंने मुझे समझाया जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी.
हो सकता है जैसे मैंने उनसे सीखा आप भी उससे कुछ सीख पाए और अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाए। और आज थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो मैं उस क्रिया को कर कर भी आपको सिखा पाती, लेकिन बताती हूँ आप कर पाएंगे उसको आराम से। तब उन्होंने मुझे बताया कि श्री कृष्ण भगवान जब पैदा हुए मथुरा में तो 11 वर्ष 56 दिन वो ब्रज में रहे। उसके बाद कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को मुक्त कराया, अपने नाना जी को उग्रसेन जी को सारा राजपाट दिया, वहां का राजा बनाया। संदीपनी ऋषि जी के पास गए, अपनी दीक्षा ग्रहण करी। जब वो लौट कर वापस आए तो देवकी माँ ने कहा आज तो मैं अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी अपने बेटे। उन्होंने खाना बनाया। अब वो कभी रहे नहीं अपनी माँ के पास, तो उन्हें नहीं पता कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो उन्होंने है ना उद्धव जी को बुलाया और बोले कि तुम तो मित्र हो, क्या मुझे बता सकते हो मेरे पुत्र को क्या अच्छा लगता हो? तो उन्होंने कहा माँ ऐसा करो, एक रोटी लो, रोटी के अंदर मक्खन लगाओ और मक्खन के अंदर थोड़ी मिश्री रख के रोल करके आप उनको दे दो। वो बहुत शौक से खाया। अब उन्होंने ऐसा ही किया, पूरा थाल सजाया खाने का और उसके अंदर रोल करके वो रोटी रखी। अब जैसे ही बोले कि कृष्ण भगवान से बोलती हैं कि आजा बेटा आज खाना मैं खिलाती हूँ। गए, उन्होंने जैसे ही थाल में वो एक कोने में वो रोटी देखी मक्खन और मिश्री के साथ, आंखों में आंसू भर गए। आंखों में आंसू आए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ा सा खाया, उसको खाने के बाद वो चले गए और उसके बाद वो रुदन वाली स्थिति में चले गए। अब जब उन्होंने देखा, दोनों माता पिता ने देखा कि हमारा पुत्र तो रो रहा है, हम तो अच्छे से करना चाह रहे थे, तो ये रो क्यों रहा है? उद्धव उनके बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने फिर उद्धव को बुलाया और कहा बेटा किसी तरीके से कृष्ण को समझा ये रो क्यों रहा? मैंने तो खाना इसलिए बनाया था कि अच्छा हो जाए, फिर अब वो तनाव में क्यों है, उसके अंदर इस तनाव की स्थिति में वो रो क्यों रहा है? जब ये स्थिति आई तो उद्धव जी तो बहुत ज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वज्ञानी, जिसने है ना नारद जी के साथ मिलकर भागवत की रचना करवाई व्यास जी के द्वारा, वो ज्ञानी। अब उन्होंने तो बोला कि मेरे अंदर तो ज्ञान का भंडार है, मैं श्री कृष्ण जी को बहुत जल्दी समझा के आ जाऊँ। कि वहां गए, उन्होंने समझाना शुरू किया आप तो वैराग्य की बात करते हो और फिर आप तो खुद ही रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है इसलिए रो रहा हूँ। उन्होंने कहा ब्रजवासियों की याद आ रही है तो 6 किलोमीटर तो है, मथुरा और वृंदावन के बीच का डिस्टेंस जो है जस्ट 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाके मिलके क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा प्रेम मिलना नहीं है, प्रेम में आसक्ति में और मोह में बहुत फर्क है। मिलना मुश्किल नहीं है, पर मैं उनको आज याद करके रो रहा हूं। उन्होंने कहा कमाल हो गया। बोला अगर आपको ये जानना है, श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा अगर ये जानना है प्रेम क्या है तो तुम जाओ और एक बार ब्रज जाके वृंदावन जाके ब्रजवासियों से मिलकर आओ और जैसे तुम मुझे समझा रहे हो आज वैसे ही उन्हें समझाना। जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हो उसी तरीके से उनको समझाना। मुझे ये बताओ कि कितनी देर में समझा कर लौटोगे? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ। उन्होंने बड़े आराम से कहा शाम तक आ जाऊंगा, संध्याकालीन तक मैं आपके पास लौट के आ जाऊंगा और सब ब्रजवासियों को समझा जाऊंगा जो इस तरीके का रुदन कर रहे हैं जैसा कि आज आप कर रहे हैं उन्हें याद करके। ठीक है, गए। ब्रजवासियों का एक नियम था, जब से कृष्ण भगवान वहां से ब्रज छोड़कर गए थे तो उन्होंने क्या नियम बनाया था, वो मथुरा के रास्ते पे जाके बैठ जाते थे और पूरा टाइम रास्ते को निहारते रहते थे, कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। उस दिन रथ की जब धूल उड़ी, उन्होंने देखा कि है ना रथ आ रहा है मथुरा से, तो वो अचानक से उनके अंदर वो प्रेम उमड़ा। उन्होंने कहा आज तो कन्हैया आने वाला है। उन्होंने गए पास में, रथ रुका, उसमें से उद्धव जी उतरे। उद्धव जी जब आ रहे थे तो एक मोर पंख जो वो अपने शीश वाले मुकुट में लगाया करते थे वो दे दिया था। बोले अगर तुम मोर पंख को नहीं लगाओगे तो कोई ब्रजवासी बात भी नहीं करेगा तुमसे। उन्हें देखा, अब बार बार उठे और देखे कि भाई रथ के अंदर से कृष्ण को कान्हा को निकलना चाहिए, उनको नहीं निकले अभी तक। तो
उद्धव जी ने कहा कि मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया। उसके बाद उनको लेकर गए। अब उन्होंने कहा कि जब कान्हा ही नहीं आया तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि है ना, मुझे यशोदा रानी से मिलना है, नंद रानी यशोदा जी से मिलना, मुझे बताओ मैं किस पथ से जाऊं। उन्होंने कहा ये जो नदी बह के आ रही है ना, इस नदी के सहारे सहारे चले जाओ, तुम नंद रानी के घर पहुंच जाओगे। इसका उद्गम स्थान जो है वो नंद भवन है। उद्धव जी ने कहा कि नंद भवन ऐसा कैसे हो सकता है, नदियां तो पहाड़ से आती है, जब नदी पहाड़ से निकलती है तो उद्गम स्थान में कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आप जाके देखिए। तो जब हम वहां पहुंचते हैं, वहां जाके देखते हैं सारी गोपियां। गोपियों का मतलब फीमेल नहीं है, गोपी का मतलब गो मीन्स योर 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों पे जो कंट्रोल कर ले वो गोपी है। जब हमारा सतयुग आया था उस समय राम भगवान जब प्रस्थान कर रहे थे वन को, तो उन्होंने कहा नर जाए और मादा जाए, बट हमारा जो ट्रांसजेंडर था उसको कुछ भी आज्ञा देना वो भूल गए थे। उन लोगों ने उस समय तपस्या की थी और उनको वरदान दिया था कि जब मैं द्वापर युग में आऊंगा आप सब गोपी रूप में प्रकट हो। तो वहां जितने भी मेल और फीमेल है सबको गोपी कहा जाता है। रीजन अब है ना, गोपियों से मिले तो कोई गोपी कह रहे थे आज मैंने रात को है ना जब सपना देखा तो विचार किया तो मुझे पता लगा कि लाला आया है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, मेरी मटकी फोड़ गया, मेरे साथ ये किया, अपनी अपनी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बीच में श्री जी बैठे हुए। पूरी भागवत कथा में कहीं राधा नाम का वर्णन नहीं है, एक बार श्री जी का वर्णन आ रहा है एंड श्री जी इज द नेम ऑफ राधा। तब उद्धव जी ने कहा श्री जी कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो एक गोपी ने कहा हम सब अपने अपने स्वप्न के बारे में बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बताते कुछ। बोले स्वप्न तो वो देखेगा जब सोएगा, मैं तो सोती ही नहीं। जब श्री कृष्ण गए तो मेरी नींद भी अपने साथ ले गए, तो मुझे स्वप्न आता ही नहीं। जब स्वप्न आएंगे नहीं तो मैं आपको स्वप्न बताऊं कहां से। याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल जाओ। अब वो उद्धव जी ने जब वहां बैठे और जब उनके साथ चिंतन करना शुरू किया, अब उनको धीरे धीरे वो जो ज्ञान देने आए थे, समझाने आए थे, उसे भूल गए। He forgot the purpose of coming there. उन्होंने कहा उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं तो उन्हें समझाने आया हूं। उनकी हालत ये हो गई कि जिस तरीके से ब्रजवासी रोदन कर रहे थे उसी विरह के अंदर उद्धव जी ने रोना शुरू कर दिया और उद्धव जी भी उसी तरीके से बिहेव करने लगे जैसे बाकी गोपियां कर रही थी। अब 6 महीने बीत गए इसी तरीके से। तो एक दिन उन्हें ध्यान आया कि मैं तो मथुरा से आया था, मुझे तो मथुरा वापस जाना है, मुझे जवाब देना है श्री कृष्ण जी को। क्या मैं ब्रजवासियों को समझा पाया, क्या मैं अपने उद्देश्य में पूरा हुआ कर पाया। तो उन्होंने कहा मुझे चलना चाहिए। अब वो मथुरा गए। तो मथुरा पहुंचे तो श्री कृष्ण तो वो तक जब नहीं रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर चैनल जो है वो आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। इसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली सेल्फ हीलिंग, सेल्फ प्रोसेस, या आप इसको मतलब मेडिटेशन का नाम भी दे सकते हैं, जैसे ध्यान। बिकॉज जब आप अपने नाक पे अपना फोकस डाल रहे हैं या फिर कुछ लोग क्या करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो सेंटर पॉइंट है जहां हम बिंदी लगाते हैं आप सारा फोकस वहां लगा दीजिए और उसमें जब फोकस लगाएंगे तो माइंड वहां बिजी हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली योर सबकॉन्शियस माइंड विल गेट एक्टिव एंड प्रोग्राम इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आप लोगों ने शायद, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर मूवी भी बनी, फिल्म भी बनी है। क्या कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। गीता के अंदर भी यही कहा गया, जैसे विचार मन में लाओगे ऐसा ही आपके पास घूम फिर के आएगा। तो आप क्या करते हैं, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा लीजिए, उस माइंड को ट्रेंड कर लीजिए, उसके अंदर सारे विचार उसके हिसाब से ले आइए। नेक्स्ट स्लाइड कैन यू सी। ये थोड़े से मैंने इसके अंदर आपके तनाव के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करी, जो अनिद्रा वगैरह है। इन सब लक्षणों के ऊपर काम करने के लिए आप इस चीज को शाम को रात को सोते समय एक बार ट्राई कीजिएगा, आज ही कीजिएगा बेशक से।
जिनको भी स्ट्रेस है और जो ठीक से सो नहीं पा रहे बिस्तर पे सो जाइए और सोने के बाद में थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जो लोग योगा करते हैं उन्होंने देखा होगा, जब योगा का हमारा पूरा का पूरा प्रकरण कंप्लीट हो जाता है, जब हम योगा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसके बाद लास्ट में क्या कहते हैं, रिलैक्स योरसेल्फ। आप सीधे सो जाइए, अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दीजिए, अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए और फिर मन में विचार कीजिए, मेरी हीलिंग हो रही है, मैं सुख में जीवन प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये सारी की सारी खुशियाँ आ रही हैं। ये सब अट्रैक्ट करें। क्यों करते हैं हम? सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं हम जैसे। तो आप यही प्रक्रिया अगर रात को करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करेंगे, कहीं पे बिजी कर दीजिए अपने कॉन्शियस माइंड को और सब कॉन्शियस माइंड से सोचना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। यू विल बी एबल टू स्लीप फाइन। सो आई थिंक मैंने बहुत बोला। उम्मीद करती हूँ आप इस सब चीज से थोड़ा सा इस प्रक्रिया से मुझे तनाव रिमूव करने में बहुत आसानी होती है। ये मेरी अपनी निजी जिंदगी के ऊपर अपनाया हुआ है फॉर्मूला है। मैंने इसको प्रैक्टिस किया और आई थिंक 6 महीने में मैं अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर पाई। आप भी कर पाएंगे। आगे कभी मुलाकात होगी तो इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for sharing such beautiful insights. In today's time, when our nation faces complex internal and external challenges, when there is a war-like atmosphere on our borders, rising unrest and acts of terrorism that test our collective strength, our soldiers, security personnel, and forces like the CISF are standing firm, not only with weapons in hand, but with unwavering will and mental endurance. This endurance, however, isn't just physical. It is psychological, it is emotional, it is spiritual. And it needs nurturing, care, and training, just like any other skill. Today's session, titled Brain Inner Power to Tackle Mental Endurance, has been specially designed for our guests from the Central Industrial Security Force to help them understand and explore the inner mechanisms of their mind and how their mental state indirectly affect performance, stress response, and inner balance. Through the powerful practices of hypnosis and sound vibration therapy, the session will take you deep into the science of the subconscious mind. You will learn how breath, thoughts, emotions, and the nervous system are all interconnected, and how to create calm in the chaos. Whether it's maintaining focus in the middle of high-risk operation or simply recovering from emotional exhaustion, today's training will offer practical research-backed techniques for self-regulation, clarity, and strength. I feel honored to welcome the expert behind today's session, a scholar, a healer, and a visionary in alternative therapy, Professor Dr. Kapil Dev Sharma sir. Today, he will guide us through a transformative journey into the power of the subconscious mind, teaching us how to manage our thoughts and emotions using the profound techniques of hypnosis and sound therapy. Sir, we are truly eager to learn from your wisdom and experience. The stage is all yours. Please welcome the resource person of the day. Thank you very much. Really, I am very thankful to all of you to be part of this session. And ये बस समाज की बात है मेरे लिए कि जब हम अर्धसैनिक बलों की बात करते हैं तो एक ऐसा सैनिक बल जो 1965 से लेकर आज तक अपने उस समर्पण के लिए जाना जाता है, उस डेडिकेशन के लिए जाना जाता है जो वास्तव में वो डिजर्व करता है। अर्धसैनिक बल का मतलब सिर्फ एक कुछ वेपन्स को चलाने का तरीका नहीं या उसमें से कुछ प्रशिक्षित होकर के एनएसजी या किसी और ट्रेनिंग सेंटर में जाने का। आज आप सबको पूरा प्रयास करेंगे कि वो ट्रेनिंग दें जिससे कि आपका मेंटल बैलेंस, साइकोलॉजी का बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप यहाँ से सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से फ्रेश होकर के और नई थॉट के साथ जाएंगे। आपको बस वही फॉलो करना है क्योंकि वी हैव
कुछ सभी लोगों ने कहा, शेयर किया। मैं आपको वो सब चीज़ें बताता हूँ जो कई बार कुछ गूगल्स में या किसी और जगह पर अवेलेबल नहीं है। वास्तव में क्या है कि हमारा जो ये दिमाग है 160 ग्राम का है और इसमें 16 लाख नर्व्स जुड़ी हुई है। हर एक नर्व के अंदर उसका एक एक्सपीरियंस है और उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ सिम्टम है। तो सबसे पहले एक साउंड वेव्स को आप लोगों को एक्सेप्ट कराकर आपके जितने भी टेंशन है उसको रिलीज करते हैं। उसके बाद इस सेशन को आगे करेंगे। यूजुअली ये सेशन काफी बड़ा होता है और कई दिनों का प्रोग्राम होता है। हिप्नोसिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ मंत्र पढ़ करके आपसे जो चाहो वो करवाइए। नो, मेडिकल हिप्नोसिस एक अलग चीज है जिसमें कि प्रैक्टिकली मैं आपको से कुछ लोगों को बुलाऊंगा और उनकी कोशिश करके वो स्ट्रेस, वो टेंशन और वो पास का मिग्रेशन परमानेंट दूर कर देंगे। तो दिस इज अ सिंपल डिफरेंट टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं अपने ब्रेन को एक करने की, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस। सो आप लोगों ने बस एक ही काम करना है, एक साउंड यहाँ पर चलेगा और आप लोगों को वो साउंड बिल्कुल आंखें बंद करके सुनना है, सिर्फ सुनना है और सिर्फ सुनना है। ठीक है, आप बिल्कुल अपने कंफर्टेबल तरीके से बैठिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नीड टू बी हैव मेनी मोर, और उसके बाद वन बाय वन वी विल स्टार्ट द सेशन। सो आपने करना क्या है कि साउंड को सुनते हुए बिल्कुल अपनी आंखों को जीरो बैलेंस में लेके जाना। ये खास टेक्निक है। देखिए, ये कहा जाता है कि जब मनुष्य नहीं था तो ब्रह्मांड था, और जब ब्रह्मांड नहीं था तो तारे थे, और जब तारे को नहीं थे तो सिर्फ एक धूल थी, सिर्फ एक धूल। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जाति का, किसी भी परंपरा का कोई भी व्यक्ति हो वो धूल में मिल जाता है। तो कहा जाता है कि आज भी हम उस तारों के डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और इसीलिए हमारे ब्रेन की बहुत सारी संरचनाएं आज भी ब्रह्मांड की जो ये नक्षत्र बने हुए हैं इससे मिलती है। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आज भी हम लोग पैरानॉर्मल्स, एक्सोर्सिज्म्स पे जब काम करते हैं तो उनके अस्तित्व का पता लगता है। पैरानॉर्मल जिसको कहा जाता है कि होते, ये फैक्ट है। कई साल पहले एक मुरैना जिला है, उस मुरैना जिला में एक 64 योगिनियों का मंदिर है। लकीली एक स्कॉलर ने मुझे बुलाया कि शर्मा सर हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं लद्दाख में कुछ समय 4 साल वहां रहा और वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखना, समझने का प्रयास किया। बहुत सारे बौद्धिस्ट थे, बहुत सारे मॉन्क्स थे जिन्होंने मुझे ये सब ज्ञान दिया। तो वहां पर मैंने पहली बार पाया कि 64 योगिनियों का मंदिर मुरैना में एक ऐसी ट्रायंगल पर बना हुआ है कि वास्तव में अगर वहां पर आप कभी बैठेंगे तो अचानक आप अपने आप से बात करना शुरू कर देंगे। एक साइंटिस्ट मेरे साथ थे इसरो के, उन्होंने अचानक से अपने बारे में बहुत कुछ बोलना, अनाप-शनाप शुरू कर दिया। मैं कोई नहीं था, he is a highly qualified 3 PhD postdoctorate author, और अचानक उस मंदिर के अंदर एक ऐसा प्रांगण, उसके पास एक छोटा सा मंदिर और उसी तरह से उसके तुलनात्मक कैलाश। तो खैर ये बहुत एक मिस्टिकल बातें हैं और इसके लिए एक लंबा समय हमें चाहिए एक दूसरे को समझने का। तो फिर आप शुरुआत करते हैं एक साउंड थेरेपी। इसके लिए आपको 3 शब्दों को फॉलो करना है। जैसे अभी अगर आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो ये वॉइस हिप्नोटिज्म का पार्ट है। मैं आपको आपके दिमाग से बहुत दूर ले जाऊंगा और आपको वो साउंड सुनते हुए बस मेरी आवाज को सुनना है, और आपकी सारी यादें, आपका सारा पास्ट, आपकी सारी एक्टिविटीज आपके सामने आ जाएगी। सोना नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेन को शांत करना है। ये साउंड ऑटोमेटिकली आपको साउंड में उस स्टेज पर ले जाएगा। तो शुड वी स्टार्ट? कि आप सभी यहाँ से जिसका भी सिम्टम है, जिसको नींद नहीं आती और जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जिसको आर्थराइटिस है, जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको कोलेस्टाइसिस है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट करता है, जिसकी अचानक आंखों का नंबर बढ़ जाता है, हेयर फॉल शुरू होता है, ये ठीक 15 मिनट के सेशन के बाद वो सब बंद हो जाएगा और आपकी पूरी बॉडी एक ऑटोमेटिकली बैटरी की तरह रिचार्ज होगी।
ठीक है? So 3, please close your eyes. Get relaxed. मैं 3 बार क्लोज बोलूंगा, आपने बिल्कुल क्लोज का मतलब क्लोज, कोई भी थॉट नहीं. क्लोज, close your eyes, close your eyes, stop. Listen this music. This is the recording music. The another one will be here. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. आप इस वक्त अपने घर में हैं. अपने घर के दरवाजे को देखिए. और ध्यान से देखिए. आपके आगे आपकी मम्मी है, पापा है. उनका हंसता हुआ चेहरा, तेज रोशनी है और तेज रोशनी है. ध्यान से उनका चेहरा देखिए. सफेद बाल, अपने स्कूल में जाइए. जब आपने बुलाए, उस टीचर का हाथ देखिए. फिर एक मंदिर, 1 घंटे क्लास की बनी हुई. उसमें एक तेज रोशनी. आपकी छोटी बेटी या बेटा, उसका हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ जिंदा चेहरा. आपकी शादी उस वक्त आपका
सब कॉन्शियस ब्रेक कर देता है। और जब इसके बीच में एक लाइन देखते हैं तो एक फिल्टर है, कहते हैं कि बिल्कुल इसी की संरचना का बिल्कुल यूनिवर्स में भी पार्ट है। इसलिए मनुष्य का जन्म जो है वो एग्जैक्टली ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति का इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है और 5 एलिमेंट इससे जोड़े जाते हैं। ठीक है, 5 तरह की फायर होती है इंसान के साथ। आज तक बहुत कम लोगों ने आपने सुना होगा। फायर जो है वो 5 वैरायटीज की है इंसान के अंदर। फर्स्ट फायर होती है, इसका नाम होता है अटैचमेंट। जब आप किसी जुड़ना शुरू करते हैं तो वो अटैच। दूसरी फायर है डिटैच्ड। ये कुछ ऐसा समझ के चलते हैं कि जिससे भी हम अटैच्ड होते हैं, कोई भी उससे डिटैच होना है। ये प्रकृति का नियम है। कितना ही बढ़िया एप्पल का पेड़ हो, एक वक्त के बाद उस एप्पल के पेड़ पर से उस एप्पल में गिरना है और एक नया एप्पल क्रिएट होना है। तो पहली फायर है अटैचमेंट, दूसरी फायर होती है डिटैचमेंट, तीसरी फायर कंपैरिजन, और चौथी फायर जेलस, और 5th फायर प्राइड। तो ये 5 फायर हर एक को अपने साथ अटैच करते हैं। अब इसको कैसे अपने ब्रेन से दूर करना है? नेक्स्ट सेकंड स्लाइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो ब्रेन है ये एक थॉट है, किसी भी तरह का थॉट या सेशन लेना है तो उससे कई तरह की तरंगें पैदा होती हैं। ये जितनी भी तरंगें हैं ये पॉजिटिव थॉट है, और जितनी भी ऑरेंज है ये नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट होती जाती है। और जितने भी स्पॉट इसमें आ रहे हैं ये एग्जैक्टली बताते हैं कि मुझे करना क्या है। कई बार बड़ी असमंजस की स्थिति होती है जिसमें कि हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर मेरे ऑफिसर ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया है और मन कहता है कि मुझे नहीं करना, लेकिन इंस्ट्रक्शन और यूनिफॉर्म कहती है कि बड़े ऑफिसर का ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा, तो 3 चीजें अलग अलग है। तो ऐसी 3 चीजों के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। ब्रेन कहता है कि आज कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा कॉफी लेकर के अपनी मम्मी के साथ बैठ करके सब कुछ रोना पीटना है। लेकिन ऑफिसर का ऑर्डर है नौकरी बचानी है तो ये सब करो। तो इस पूरे जंजाल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस क्रिएट होते हैं और ये न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस कभी भी गलत नहीं होता। अगर एक रेस कोर्स के घोड़े को अगर आपने कभी देखा हो, मस्कुलर घोड़ा जो होता है अरेबियन हॉर्स, उसकी खास बात क्या होती है कि वो जब उसको रेस कोर्स की पैकेट में लाके खड़ा करते हैं शूट करने से पहले, तो वो वहां पर उछलता है। इट मींस वो चाहता है कि मैं तेज आऊं। तो उस वक्त उस घोड़े के अंदर, हॉर्स के अंदर वो जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा है। इसको 2-3 तरह से यूज किया जाता है। देखिए ज्यादा सोचने वाला आदमी उसे क्रेजी कहते हैं, मेडिकल साइंस कहते हैं। बहुत ज्यादा सोचोगे ना अब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो एक क्रेजीपन दिमाग में क्रिएट होता है। बहुत कम सोचने वाला बंदा संत कहलाता है, और जो बिल्कुल भी नहीं सोचता उसे गॉड कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो जो गॉड पार्टिकल है ना वो एग्जैक्टली कुछ नहीं सोचता। हम लोगों का एक वहम है कि किसी मंदिर में जाकर के आरती करें, भजन करें, ना, नो, नेवर। इसलिए जिसने भी साउंड को पाया है, कभी देखिएगा कि गाने वाले ने पाठ करने वाले से पहले पाया है। जितने भी अगर आप देखेंगे सिंगर्स ने अपने सॉन्ग को गाया और ईश्वर को भजन पाठ करने वाले से पहले पा दिया। जिसको भी कोई संगीत आता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, उस इंस्ट्रूमेंट की जो तरंग है, उसकी जो साउंड है, वो ईश्वर की प्राप्ति का सबसे पहला और बड़ा पार्ट है। हमारे चिल्लाने में साउंड ही नहीं है। तो जब तक प्रकृति के साउंड को हम लोग पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वास्तव में ब्रेन को साइलेंट करना एक बड़ी मुश्किल चीज है। ये कभी शायद कोई नहीं सकता, और ये मरने के बाद भी शायद नहीं होता। इसलिए कई बार ऐसे एपिसोड्स मैंने देखे हैं कि जिसमें एक छोटा बच्चा एक भागवत गीता गा रहा है, अचानक एक इंडियन बच्चा अरेबिक भाषा बोल रहा है। मैंने पीछे भी डिस्कस किया था इसका।
मैं अपोलो हॉस्पिटल से अटैच हूँ, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ देखता रहता हूँ। एक बहुत संपन्न परिवार की महिला अचानक आकर रोती है, अपना सिर पटकती है टेबल पर और आत्महत्या के लिए छोटा सा उपाय पूछती है। वो एक चेकबुक लेकर के मेरे सामने बैठती है और कहती है, सर ये चेक है, मुझे बताओ कि मैं कैसे भरूं। बड़ी सी गाड़ी से उतरी, 2 ड्राइवर साथ में हैं और ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर एक बढ़िया सा जर्मन शेफर्ड कुत्ता उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। और वो आकर के ये प्रश्न पूछती है कि सर ये बताइए मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि बहुत कुछ पाने के बाद भी वास्तव में मृत्यु की चाहत क्यों है, किस लिए? तो इसके लिए बेटा चेक 1 2 3 4 तो आज वो देखते हैं, उसको बता दूंगा आपको। देखिए वो जो है 4 3 यस, ये हमारे ब्रेन के 4 पार्ट हैं और ध्यान समझिएगा। फर्स्ट ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल हमारे राइट ब्रेन के पीछे होता है, आगे होता है, आंखों के पीछे। सेकंड ये हमारे लेफ्ट आंख के पीछे आता है। थर्ड ये बिल्कुल पीछे। कुल मिलाकर समझिए कि 4 चैम्बर है ब्रेन के अंदर और ये चारों चैम्बर अलग अलग बात कहते हैं। फर्स्ट चैम्बर जो है ये प्योरली एजुकेशन को फोकस करता है। ये साइंटिफिक रीजन है कि जो पहला चैम्बर है वो सिर्फ एजुकेशन, सीखना, पढ़ना, पाठ करना, समझना, उस पर फोकस करता है। कुदरत ने बिल्कुल इसी के अपोजिट जो सेकंड चैम्बर है बनाया है, इमोशन का। वो कहता है कि तुम पढ़ के दिखा, मैं तेरी फ्रेंडशिप किसी अच्छे लोग से कराता हूँ और तेज पढ़ेगा था। इसलिए एक अच्छा खासा बच्चा कॉलेज का पढ़ रहा है, वो एक इंट्रैक्शन होता है, एक अफेयर में आता है और अपनी पढ़ाई भूल करके अपना जीवन उस लड़की के लिए समर्पित करता है। ठीक है, बिल्कुल इसके पीछे थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट सोच विचार को पुख्ता करता है कि नहीं बेटा तुझे IAS बनना है, तुझे बड़ा अफसर बनना है, पढ़ाई कर, शादी लड़कियां बहुत मिलेंगी, पहले पढ़ाई कर। तो थर्ड चैम्बर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन को चेक करता है। और जो कुदरत ने चौथा चैम्बर बना रखा है ये है डिसीजन, कि नहीं मुझे ये करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। और इस चौथे चैम्बर के खुलते ही एक बीमारी जन्म लेती है, ब्लड प्रेशर। जब भी आप आपस में द्वंद्व करते हैं, किसी भी बात को लेकर के अपने आप से बहस शुरू करते हैं, तो बहस शुरू करते करते अचानक वो कब एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता लगता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में जब भी डिसीजन लो, या तो करना है या नहीं करना। तीसरा बीच का रास्ता कभी मत निकालना। अगर आपको लगता है कि आपको ये ऑर्डर नहीं मानना, तो अपने ऑफिसर के पास सीधा जाके सब मैं नहीं कर सकता। फिर जिसको ये आर्ट आती है वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जीता है। और जो भी बीच का रास्ता अपनाता है, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर के साथ अटैच हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, तो तीसरी उसकी चाची आ जाती है डायबिटीज। और इन तीनों के इकट्ठे होते KFT शुरू हो जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। और किडनी के आते ही ब्लड का गाढ़ापन और पतलापन खत्म हो जाता है, अटैक करता है हार्ट को, और हार्ट लेटाता है। लेटते ही ब्रेन में डार्क स्पॉट्स पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं, और ट्यूमर और ब्रेन हैमरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 बात की एक बात, सिंपल सी बात, जो आपको ठीक लगता है वो ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका कि जो आपने डिसाइड किया यस, और नहीं किया यस। नेवर ट्राई टू बी इन द मिडल। नेक्स्ट, और जो इसको मिडल लेके चलता है ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स यस, इन चारों चैम्बर्स के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है। कहते हैं कुदरत ने एक बॉक्स बनाया हुआ है। जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसके सिर का पल्पेशन होता है, सॉफ्ट होता है।
तो एग्जैक्टली क्या है, वो एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स तैर हैं। ये एक न्यूरॉन मतलब आपकी एक लाइन, और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस एक न्यूरॉन को यूज करते हैं। अब ये न्यूरॉन कैसे काम करता है? ये न्यूरॉन हर बात को आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में आगे चलता है, और इस तरह के न्यूरॉन्स ये पूरे ब्रेन के अंदर एक्ट करते हैं। ये आपके डिसीजंस को, आपके एक्सेप्टेंस को डिनाई एक्सेप्ट करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि एक न्यूरॉन जो कि केमिकल से टच होता है, वो एक डिसीजन बनता है, और जब हम किसी डिसीजन के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो जाकर के एक दूसरे केमिकल और न्यूरॉन्स को टच करता है। ये अपनी शेल से बाहर निकलता है और जाकर के इसमें कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। इस तरह से ये आपस में जुड़ते जाते हैं। इट मींस ये है टेंशन। इट मींस काम एक था, ये रिलेशन खराब हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, और पूरी लाइफ को एक के बाद एक स्ट्रेस, टेंशन बढ़ती जाती है। रीजन क्या था? क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया, और अचानक एक दिन ये ट्यूमर का शेप ले लेता है। तो बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लो, मेहनत करो, लेकिन कभी भी उस मेहनत और स्ट्रेस को हावी मत करो। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड वीडियो। दिस इज द ब्रेन। ये जितने भी ब्लू पार्टिकल्स हैं, ये आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, और जितने भी ये डार्क और गोल्डन शेड्स हैं, ये आपके नेगेटिव्स हैं। इट मीन्स जब भी हम कभी किसी चीज को सीखना समझना शुरू करते हैं, तो ब्रेन का जो ये पार्ट है, ब्लू पार्टिकल, ये एक्टिव हो जाता है, और 24 घंटे ये चलता है। सोने से ये, और वेपन को सीखना बहुत आसान, किसी रेंज पर निशाना लगाना उससे आसान, किसी को भी शूट कर देना उससे आसान, लेकिन कब शूट करना है ये मुश्किल है। इट मींस हर सिचुएशन आसान है, लेकिन सही डिसीजन कब, हर चीज हो जाती है कि कैसे शूट करना है, किधर से शूट करना है, किन परिस्थितियों में शूट करना है, लेकिन किस मोमेंट पे शूट करना है, ये कुछ ऐसा ही ह्यूमन ब्रेन, कि हमें किस बात को कहाँ पर कब बोलना है, ये सबसे टेक्निकली टफ पार्ट है। इसलिए जितने भी साधु सन्यासी 1000 साल लोग जिया घोड़ी, ये क्या करते हैं? बात करना बंद कर देते हैं। ये अपने आप से, सोसाइटी से अपने आप को अलग कर देते हैं। ये अपने आप को दुनिया से दूर कर देते हैं, ताकि कम से कम बोलना पड़े। तो शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ सिमटा हुआ है कि आप अगर इसको पढ़ने बैठेंगे तो ये आज की मॉडर्न लाइफ को बिल्कुल प्रूव करता है। एग्जैक्टली है। यस, इसके बाद एक सेशन आपका होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक आपको देंगे, एक मॉक ड्रिल भी होनी है यार, ठीक है? उसके बाद 1 बाय 1 आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनके साथ एक टेंशन है? रेज योर हैंड्स। कितने? मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट, सभी मेरे से उम्र में छोटे ही हैं, बच्चे हैं सारे। इट्स फर्स्ट टाइम दैट मैं बच्चों को देख रहा हूँ जो वास्तव में एक वेपन उठा करके फायर कर सकती है। मुझे सीआरपीएफ का सेशन हुआ, उनको कुछ कमाना होता है मेरे पास कि शर्मा सर हमें ये चीज़ें समझ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड आई एम थैंकफुल टू अनिल साहब, इंस्पेक्टर अनिल साहब, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मैंने इसे रिक्वेस्ट करके कहा था, मैं सर कुछ फीमेल स्टाफ इज रिक्वायर्ड। ये बहुत जरूरी है। हमें एक्चुअली अपने टाइम को पास नहीं करना, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना, ये कोई भी कर देगा, एनीबॉडी। दुनिया, सोसाइटी और यूनिवर्स देखना चाहता है कि आपके पास डिफरेंट क्या है। डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि हम फाइट में लगे, हमें मार्शल आर्ट्स आता है, हम एक साथ 7 तरह के वेपन्स में एक्सपर्ट हैं, हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। नो, ये सबके साथ।
कुदरत ने हर एक को एक स्पेशलिटी दी है, हर कोई गिफ्ट दिया है, और आज मैं प्रूव करूंगा आपके पास वो क्या गिफ्ट है। आपको वन बाय वन यहाँ पर बुलाऊंगा सेशन के बाद, इम्प्रोवाइज करके आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है वो आप डिक्लेयर करो, ठीक है। इम्प्रोवाइज ये मतलब नहीं होता कि हाँ भाई नहीं, उस टेंशन को वास्तव में जिसके लिए आप खुद को टेंशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। यस, अभी ये प्री पोस्ट सेशन है और इसके बाद आई थिंक सभी लोगों ने इसको सुना समझा होगा, एंड इसके बाद का जो सेक्शन प्रैक्टिकल है वो सेशन आप बहुत ध्यान से सुनना, समझना और उसको फील करना, लेकिन उसको एक दूसरे पर प्रैक्टिकल मत करना, ठीक है। Thank you so much, sir. Now it's time for high tea. All the volunteers are requested to escort the CISF person to the high tea area. कर देना उससे आसान, लेकिन कब शूट करना है ये मुश्किल। इतनी हर सिचुएशन आसान है, लेकिन सही डिसीजन कब, हर चीज हो जाती है कि कैसे शूट करना है, किधर से शूट करना है, किन परिस्थितियों में शूट करना है, लेकिन किस मोमेंट में शूट करना है ये टफ। कुछ ऐसा ही ह्यूमन ब्रेन कि हमें किस बात को कहाँ पर कब बोलना है, ये सबसे टेक्निकली टफ पार्ट है। इसलिए जितने भी साधु सन्यासी 1000 साल लोग जिया घोड़ी, ये क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, ये अपने आप से, सोसाइटी से अपने आप को अलग कर देते हैं, ये अपने आप को दुनिया से दूर कर देते हैं ताकि कम से कम बोलना पड़े। तो शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ सिमटा हुआ है कि आप अगर इसको पढ़ने बैठेंगे तो ये आज की मॉडर्न लाइफ को बिल्कुल प्रूव करता है, एग्जैक्टली है। यस, इसके बाद एक सेशन आपका होगा, अब एक छोटा सा ब्रेक आपको देंगे, एक मॉक ड्रिल भी होनी है यार, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनके साथ एक टेंशन है, रेज योर हैंड्स। कितने, मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट, सभी मेरे से उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं सारे, इट्स फर्स्ट टाइम दैट मैं बच्चों को देख रहा हूँ जो वास्तव में एक वेपन उठा करके फायर कर सकती है। मुझे सीआरपीएफ का सेशन हुआ, उनमें कुछ कमांडोज हैं मेरे पास कि शर्मा सर हमें ये चीज़ें समझ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई एम थैंकफुल टू अनिल साहब, इंस्पेक्टर अनिल साहब, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मैंने इसे रिक्वेस्ट करके कहा था, मैं सर कुछ फीमेल स्टाफ इज रिक्वायर्ड, ये बहुत जरूरी है। हमें एक्चुअली अपने टाइम को पास नहीं करना, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना, ये कोई भी कर देगा, एनीबॉडी। दुनिया, सोसाइटी और यूनिवर्स देखना चाहता है कि आपके पास डिफरेंट क्या है। डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि हम फाइट में हमें मार्शल आर्ट्स आता है, हम एक साथ 7 तरह के वेपन्स में एक्सपर्ट हैं, हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, नो, ये सब के साथ कुदरत ने हर एक को एक स्पेशलिटी दी है, हर कोई गिफ्ट दिया है, और आज मैं प्रूव करूंगा आपके पास वो क्या गिफ्ट है। आपको वन बाय वन यहाँ पर बुलाऊंगा सेशन के बाद, इम्प्रोवाइज करके आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है वो आप डिक्लेयर करो, ठीक है। इम्प्रोवाइज ये मतलब नहीं होता कि हाँ भाई नहीं, उस टेंशन को वास्तव में जिसके लिए आप खुद को टेंशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। यस, अभी ये प्री पोस्ट सेशन है और इसके बाद आई थिंक सभी लोगों ने इसको सुना समझा होगा, एंड इसके बाद का जो सेक्शन प्रैक्टिकल है वो सेशन आप बहुत ध्यान से सुनना, समझना और उसको फील करना, लेकिन उसको एक दूसरे पर प्रैक्टिकल मत करना, ठीक है। Thank you so much, sir. Now it's time for high tea. All the volunteers are requested to escort the CISF person
to the high tea area. You all had a great refreshing break. Now, resuming our journey inward, the second part of this training session. This part of the session is where knowledge meets experience. In the next few moments, our respected resource person, Professor Dr. Kapil Dev Sharma sir, will guide us through a practical and deeply engaging demonstration of sound wave therapy, a technique that uses vibration and frequency to harmonize the mind and body. In this segment, sir will demonstrate a method known for its ability to calm the nervous system and restore inner balance. This will also include practical exercises to help manage thoughts, stress and mental fatigue. So without further delays, let us once again welcome the expert leading us on this fascinating journey, Professor Dr. Kapil Dev Sharma sir. Thank you very much. In the last session, one of the things we have learned, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. Avish, where is Avish? Get the gloves. Now I'm going to start a practical session. उससे पहले ये अगर start करूँगा and close the eyes. अच्छा. इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे अपने आप को बैलेंस करें. एक तो टेक्निक थी जिसमें कि हम साउंड के बिहाफ पर अपने आप को कर दें. नाउ आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू ये जो एक डायग्राम है ये हिप्नोसिस का डायग्राम जिसमें कि किसी के भी ब्रेन को एक खास तरह से प्रेस किया जाता है और प्रेस करके उसको उसके पास जनरेशन से रिलीज कर देते हैं. थैंक यू मैडम. सो ताबिश वन चेयर क्योंकि मुझे लिमिटेड है तो मैं ये चाहूँगा कि जिसको भी लगता हो कि उसको उसका पास परेशान कर रहा है. गुड. एनीबॉडी एल्स? तो इसमें काफी एनर्जीज बाहर जाती है. इनको कोई भी एनर्जी हिट ना करे एंड ही विल बी कंफर्टेबल, तो इसलिए इस ग्लव्स को यूज किया जाता है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू बी कीप माई सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, ऐसा नहीं. ठीक है. फर्स्ट स्टार्ट दिस साउंड. सो वी हैव आवर वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर भालू की एक खासियत है, he loves street. इनका खेतों में क्या होगा अब बता. खेती बाड़ी फोर्स में कैसा लगता है? ओके. प्लेक्सस ये एक साउंड होगा. भालू आपने करना क्या है कि आपने डीप ब्रीथ लेनी है और इस आवाज को सुनना है. ठीक है. और भालू को उस हाथ के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को बांध सकता है. कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि पूरी ब्रेन के अंदर हजारों लाखों नर्व्स हैं और मुझे उस नर्व को तलाश कर रहा है जहां पर कि भालू अपसेट. हम उस नर्व के अंदर जाकर के इसका उस टेंशन स्ट्रेस निकालते हैं. राइट भालू? So we are going to start all these. और इसको आप सभी बहुत ध्यान से समझिएगा और गलती से भी इसको प्रैक्टिकल अपने आप से मत करना कि चल तो बैठ मैं दबा. ठीक है. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि सीधा पैरालिसिस देगा. बी केयरफुल. और अचानक से बीपी बहुत डाउन हो जाएगा. ठीक है. Yes. 3, 2, 1. Stop. Close. Close your eyes.
Now open your eyes. How do you feel? Fresh? Okay? Done. Clap for it. मालूम हुआ आज एक अच्छी नींद आएगी और काफी अच्छी नींद आएगी। Anyone else? ये लड़का काफी टेंशन लिए बैठा है। भानु के ब्रेन में काफी अलग सी टेंशन है। क्यों भाई? एक साथ इतनी टेंशन क्यों? देयर इज नो नीड बेटा, ठीक है? भाई बहुत छोटी उम्र है, चीजों को आगे छोड़ दो 5 साल बाद के लिए। डोंट थिंक टुडे। ठीक? ये आवाज सुनाई दी थी। लंबी ब्रेक लेकर के इस आवाज को पहले 3 टाइम सुनना है। सुनाते हैं ना? तो ये आवाज जैसे होता है ना, किसी ऊंचाई से नीचे उतरते हैं, नीचे उतरना है और नीचे उतरना है और ऊपर चलना। एक साउंड आएगा तो आपने सुनना है, फिर सेकंड साउंड में उसको और नीचे लेके चलना है, लंग्स के नीचे, उसको और नीचे एब्डोमेन में, और यहाँ पर आकर के रिलीज होना है। यहाँ पर आते ही आपका थर्ड कॉन्शियस एक्ट हो जाता है। ठीक है सब? ओके, यस, 3, 2, 1।
कैसा लग रहा है? हाँ, किसकी डेथ हुई थी? किसी की डेथ हुई है रिसेंटली? किसकी डेथ हुई है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रोल था क्या उनका लाइफ में आपकी? तो वो एक डेथ का सीन, एक लाल कपड़ा, एक स्ट्रेचर, उस पर वाइट, ये दिमाग में आपके सबकॉन्शियस में अटका हुआ है। किसी की डेथ में ज्यादा गए? ऐसा तो सीआरपीएफ में कोई नहीं लगा। अच्छा, इसमें मेरी फोटो अच्छी है, इसमें फोटो अच्छी है, ठीक है? मीरा कैसे आप? शादी कब हुई थी? 17। ठीक है सब? कोई शिकायत अपने आप से? हाँ, वो ठीक है, ये क्या बता दीजिए। ये बेटा क्या ले लिया? क्या लिया? हाँ मीरा साहब, आपने करना क्या है, वो एक साउंड पर आपको सुनना है और उसको नीचे उतारना है, जैसे ना? हाँ। उसके बाद सेकंड स्टेप, 3 बार वो साउंड सुनना, उसके बाद जहां पर मेरी फिंगर आपके सिर पर चलेगी वहां पर उस साउंड को लिखना। धीरे से मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां की वेन्स उलझ, ठीक है? नींद आएगी, सो जाना, परमिशन ना? अभी आप इंचार्ज है सर, अभी आप इंचार्ज है। 3, 2, 1।
स्टूडेंट्स काफी नींद है चुकी हुई। ये सोना चाहते हैं भाई? आप ड्यूटी करा करा के थका आता है। सभी सोना चाहते हैं सर। Am I right? ठीक है, बहुत सारी नींद चुकी हुई है। एक देखे बढ़िया आसान क्या यस आप कुछ मेन में से देखते हैं, कोई भी इसको लगता हो कि कुछ ऐसी चीजें जो सॉल्व नहीं हो कोई भी शाबाश बेटा। पद्मा राइट, ठीक है पद्मा, सुबह का प्रोसेस ठीक है। किसी भी तरह की टेंशन मत लेना, आप टेंशन बहुत लेते हो। हाथ छोड़ने की बात है राइट, कौन फ्रेंड इसकी क्यों भाई इतनी टेंशन दिला रखी है इसको? ठीक है बेटा, क्लोज योर आईज। 3 2 1 पद्मा से मुझे पता लगी, अभी नॉट शेयर है बहुत पर्सनल है, तो बड़ा इजीली आप किसी के बारे में उसका पूरा पास्ट प्रेजेंट निकाल सकते हैं। यहाँ आपको परमिशन टू शेयर एवरीथिंग विद ऑल। जैसे मैंने भानु के से में बहुत कुछ देखा, बहुत बड़ा क्लाउड है, ठीक है, बहुत कुछ इसने इकट्ठा किया है, कभी पैसा इकट्ठा करना चाहता है उसको नई करेंसी का बड़ा शौक है, क्यों भाई ठीक है ना? नए नोटों का, नई करेंसी का बड़ा शौक है उसको। बिल्कुल इसके अपोजिट उसको कुछ इकट्ठे करने का शौक है। कई बार पद्मा को कुछ अच्छे कपड़े, कुछ उसको संभाल कर रखना है पद्मा, ठीक है, ये इसमें है। अच्छा इसको लगता हो कि वाकई टेंशन है, कोई भी पीछे से अच्छा टाइम हो गया, चलिए Krishna. Yes. Now we are going to experiment with Krishna. इसका नाम बड़ा सीक्रेट है, ठीक है? 3 2 1
कैसे हो? हल्का बहुत सिर्फ दर्द क्यों है? सिर्फ हमेशा दर्द की शिकायत की है? ये ना कई बार क्वेश्चन सुनने का अंतर ब्रेन में स्वेलिंग है। आप एक काम करता एक ना मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों ने क्या करा उसको लगता हो कि उसका कुछ हल्का भारी बन रहता है। आपने बस एक ही काम करना है कि एक बकेट पानी लेना है गर्म, वो इतना गर्म हो कि जल जाए, उसमें टॉवल डिप करके अच्छे से निचोड़ के सिर पर लपेट लेना, ठीक है? और आपने सिर्फ 30 काउंट करना है, 1 2 3 30 काउंट करेगा उसको खोलना और ठंडे पानी में निचोड़ करके उसको लपेट लेना। आपने इसका 15 काउंट करना है, 1 2 3 4 15, उसके बाद दोबारा से डिप करना गर्म, मतलब 30 गर्म 15 कूल, ठीक है? और लास्ट में पहले कूल ये 4 बार करना है, 4 बार। और 5th राउंड में आपने पहले गर्म पानी का टॉवल फोल्ड करके उसके ऊपर ठंडे पानी का टॉवल। तो हार्डली 3-4 बार के प्रैक्टिस के बाद ये जो सडन और अचानक से धीरे से पेन होता है और बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो लड़ने लड़ाने पर विवश हो जाता है। तो बस इस थेरेपी में नो टैबलेट, नो लाइसी प्लस, नो पैरासीटामोल। मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूँ जो टैबलेट्स यूज करते हैं आपने, ठीक है? तो किसी भी सिर दर्द के लिए किसी भी टैबलेट का लेने का मतलब है बीपी को इन्वाइट करना, ठीक है? यूरिक एसिड का बढ़ना तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। नेचर ने आपको आपके लिए हीलिंग दी है, ये हीलिंग है, इसका नॉट यूजिंग। और बिलीव करें इसमें मैंने उन पेशेंट्स को देखा है जिन पर ट्यूमर था लास्ट स्टेज पर और वो डिलीट हो गया। नेचर कुदरत आपको वो ताकत देती है कि इसको डिलीट आप खुद कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो हमारा प्रेशर है फिंगर का और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी एक मेडिसिन की तरह काम करती है, ठीक है? तो बस अगर टाइम मिले तो ये थेरेपी गर्म ठंडे पानी वाली कोई बड़ा काम नहीं है, कई बार भी गर्म पानी हो सकता है, किसी को भी लगे और 3 दिन से ज्यादा करना, अदरवाइज क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? आप ये समझना चाहते हैं One last. इन सबके अंदर आने की इच्छा है, ठीक है? चल बेटा, थैंक यू वेरी मच, आप सबने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। आई होप आप सबको इतना ही मजा आया, सर को एक्सपेरिमेंट करने में मजा आया था। Now moving forward to add a lyrical touch to today's reflections, I now invite Maan Madan from Rag Society to the stage for a soulful music segment. सभी जवानों को मेरा जय हिंद। सो अभी एक छोटी सी एक पोइट्री है, पहले वो गाऊंगा, फिर उसके बाद एक गाना। सुनो शायद अब लौट के नहीं आऊंगा, सुनो शायद अब लौट के नहीं आऊंगा, और आ गया तो भी एक केसरी रंग के कफन में साथ लाऊंगा। पर देखो तुम रोना मत, पर देखो तुम रोना मत, और मैं मेरे ऊपर गर्व कभी खोना मत। तो एक गीत जो मिट्टी के ऊपर है वो मैं आप लोगों के आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो
Now it is time to felicitate the amazing personals that we had today. I request Vice Chairman Sir to present memento to Inspector Anil Kumar Sir as a token of respect and gratitude. As we are near the conclusion of this enriching event, it is now time to honor the commitment and active participation of our guest. I request Vice Chairman Sir and Director Sir to please present the certificates to CISF persons. Anil sir, इसके साथ अलग-अलग ग्रुप फोटोग्राफ एक बटालियन सब कैमरे में देखेंगे एक बार एक मिनट सर Thank you, sir. One photo for all female candidates. ठीक है जैसे थे हाँ ठीक है जैसे थे अभी काट लिए हुए पिक्चर अभिनंदन स्वागत और आज का प्रोग्राम मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखा के ही यहाँ से भेजेगा। एक छोटी सी हमारी जो है एक इच्छा थी कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। नॉर्मली आप लोग जो सिविलियंस या हम लोग आम जनता के लिए जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई भी सहयोग हमारी आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स या और भी जो भी दल हैं वो देखने में नहीं मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सैक्रिफाइसेस को का मोल जो है हम लोग
इस जिंदगी में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी कभी नहीं चुका पाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। निस्वार्थ खड़े रहना, अगर मैं CISF की बात करूं, निस्वार्थ खड़े रहना अपनी ड्यूटी पे मुस्तैदी से। सबसे पहले अगर दुश्मन की गोली आएगी तो उसका सामना करने के लिए आप लोग ही हैं। आप लोग एक ढाल हैं हम लोगों के लिए। आप लोग हमारा सुरक्षा कवच है और हम ये कभी भूल नहीं सकते। जो सुरक्षा कवच कल हमने अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा, वो सुरक्षा कवच आप लोगों ने ही दिया है। सरकारें आई, सरकारें गई, और मैं ये तहे दिल से बोलना चाहूंगा, पुरानी जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं या सर्विस में थे, हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई खराब था या उनकी वजह से हम जंग हार गए या उनकी वजह से हमारा भारत का ये हिस्सा जो है वो छिन गया। मुझे ये लगता है पॉलिटिकली, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, हमें लगता है कि फोर्सेस में कमी नहीं है, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में वहां कमियां होती है। तो अगर हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज सरकार की स्ट्रांग है, जो आज हम देख रहे हैं, तो मजाल है पाकिस्तान तो क्या, कोई भी देश आ जाए हम मुकाबला कर सकते हैं। पूर्ण रूप से विश्वास है मुझे, जो 27 लोगों की हत्या करी गई है, उसका बदला हम जरूर लेंगे, ले चुके हैं, और आगे कोई भी ऐसी रिटेलिएशन होगी, मुझे पूरी उम्मीद है हमारी फोर्सेस जो हैं वो पूरा उसका जो है डट के मुकाबला करेंगे, और हम सिविलियंस जो हैं सब कुछ खोने के लिए आपके लिए तैयार हैं। आपके लिए खुले हैं, आपके लिए हम कोई भी मदद कर सके किसी भी प्रकार की, कभी भी, तो हम जो हैं तत्पर आपके लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद। का भी करना चाहूंगा जो DIG ऑपरेशंस हैं, और अनिल जी जो DIG ट्रेनिंग है, इनका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें मौका दिया इस तरह का आप लोगों के लिए कार्यक्रम करने के लिए। और हम चाहेंगे कि ऐसे और कार्यक्रम हम आपके लिए करें, और अच्छे लेवल पे करें, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, और आपका स्वागत है। और हमारे बच्चे जो हैं उसके लिए तत्पर रहेंगे, हमारी फैकल्टीज जो हैं उसके लिए तत्पर रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर ने अभी सिर्फ एक शुक्रिया नहीं अदा किया है, हर देशवासी के दिल की बात कही है। आप लोगों का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, और शब्दों में शुक्रिया अदा करना that is not possible. And now, as a symbol of unity, pride and patriotism, I request everyone to please rise for the national anthem. शुभ नाम
deeply enriching experience. Let us carry the calm we felt today and the clarity we gained into the days ahead. Wishing you peace, strength and balance always. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.